ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मन्ये त्वां कालम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जनमिथः कलिः। मन्ये I consider Dvam your lordship, Kalam the eternal time, Ishanam the supreme lord, Anadinidhanam without beginning and end, Vibhum all pervading, Samam equally merciful, Charantam distributing, Sarvatra everywhere, Bhutanam of the living beings, Yat mitha by intercourse, Kalihi dissension. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. My Lord, I consider your Lordship to be eternal time, the supreme controller, without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. Kunti Devi knew
purport, Kunti Devi knew that Krishna was neither her nephew nor an ordinary family member of her paternal house. She knew perfectly well that Krishna is primeval Lord who lives in everyone's heart as the super soul Paramatma. Another name of Paramatma feature of the Lord is Kal or eternal time. Eternal time is the witness of all our actions, good and bad, and thus resultant reactions are destined by him. It is no use saying that we do not know why and for what we are suffering. We may forget the misdeed for which we may suffer at this present moment, but we must remember that Paramatma is our constant companion, and therefore he knows everything past, present, and future. And because the Paramatma feature of the Lord Krishna destines all actions and reactions, he is the supreme controller also. Without his sanction, not a blade of grass can move. The living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is a cause of suffering. The devotees of the Lord do not misuse their freedom, and therefore they are the good sons of the Lord. Others who misuse freedom are put into miseries destined by the eternal Kal. The Kal offers the conditioned souls both happiness and miseries. It is all predestined by eternal time. As we have miseries uncalled for, so we may have happiness also without being asked, for they are all predestined by God. No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. Everyone is suffering and enjoying the results of his own destiny. This destiny is made by the living being in course of social intercourse. Everyone here wants to lord it over the material nature, and thus everyone creates his own destiny under the supervision of the Lord, Supreme Lord. He is all pervading, and therefore he can see everyone's activities. And because the Lord has no beginning or end, he is known as the eternal time, Kal. श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, माय लॉर्ड, आई कंसीडर योर लॉर्डशिप टू बी एटर्नल टाइम। आप कौन हैं? आप काल हैं। ये भगवान, आप स्वयं काल हैं, द सुप्रीम कंट्रोलर, परम ईश्वर हैं। काल के रूप में आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं, सबका नियंत्रण करते हैं। विदाउट बिगिनिंग एंड एंड, द ऑल परवेसिव वन। आप विदाउट बिगिनिंग एंड एंड हो, द ऑल परवेसिव वन, सर्वत्र व्याप्त हो। इन डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मर्सी, यू आर इक्वल टू एवरीवन। अपनी कृपा को प्रदान करने के लिए, हाँ, यू आर इक्वल टू एवरीवन। द डिसेंशंस बिटवीन लिविंग बीइंग्स आर ड्यू टू सोशल इंटरकोर्स। और जो जीवों के बीच में टकराव होता है, दैट इज ड्यू टू सोशल इंटरकोर्स। तो यहाँ पर कुंती महारानी जो पॉइंट्स बोल रही हैं, भगवान का गुणगान कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, तो भगवान का गुणगान कर रही हैं कुंती महारानी। क्या कह रही हैं? कि आप काल हैं, समय काल हैं, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं। सुप्रीम कंट्रोलर हैं आप, परमेश्वर। आप विदाउट बिगिनिंग एंड एंड है, हम्म, शाश्वत हैं आप, एटर्नल हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा, आप दी ऑल परवेजिव वन हैं, तो आप सर्वत्र व्याप्त हैं। ये चार पॉइंट बता रही हैं। पहला क्या कह रही हैं? आप काल हैं, समय, आप परमेश्वर हैं, आप शाश्वत हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। चार।
फिर दूसरी सेट ऑफ क्वालिटीज बता रही, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मर्सी यू आर इक्वल टू एवरीवन। अपनी कृपा प्रदान करने में आप सबके लिए क्या है, इक्वल है। इक्वल। इक्वल। और जो डिसेंशन हो रहा है लोगों के बीच में, वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू सोशल इंटरकोर्स, गुण और कर्म। ये जो प्रकृति के साथ जीव खेल रहा है विभिन्न गुणों के अंतर्गत, उसके कारण ये सारा हो रहा है। बट कुंती देवी न्यू दैट कृष्णा वॉज नेदर हर नेफ्यू नॉर एन ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर ऑफ हर पैटर्नल हाउस। कुंती देवी को पता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण की शाश्वत पोजीशन कुंती देवी को पता है। शाश्वत पोजीशन क्या है कृष्ण की? कि न तो वे हाँ कुंती महारानी के भतीजे हैं, और न ही वे ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर हैं उनके पैटर्नल हाउस, वसुदेव जी के पुत्र। हाँ, जो उनका मायका है वहां के वो एक संतान है, ऐसा भी नहीं है। दोनों दोनों स्थितियां भगवान के साथ नहीं है। She knew perfectly well that Krishna is the primeval Lord who lives in everyone's heart as the super soul, Paramatma. Another name of Paramatma, feature of the Lord, is Kal or eternal time. तो कुंती महारानी को पता है कि मैं जिन कृष्ण की बात कर रही हूँ वो कौन है? परमात्मा है। कौन से परमात्मा? जो सभी के हृदय में व्याप्त है। और परमात्मा का एक दूसरा रूप भी है, या दूसरा एस्पेक्ट भी है, या दूसरा नाम भी है, या दूसरा कार्य भी है, वो है काल। तो इसमें ये हमें समझना होगा। तो जब कुंती महारानी यहाँ पर कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही हैं, तो कृष्ण के हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। तभी तो अनंत शेष अनंत काल से भगवान की महिमा गा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को धारण करते हुए, और वो महिमा खत्म नहीं हो रही है। ऐसे अनंत भगवान हैं। भगवान अनंत हैं, और उन अनंत भगवान की अनंत महिमाओं में से कुंती महारानी एक एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट की चर्चा कर रही है, वो है काल या सर्वव्यापी परमात्मा। हम्म, जो भगवान की ये जो भगवान का ये जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य, आ, ये सिमिलर ऐश्वर्य अर्जुन ने भी दर्शन किए भगवान के। आ, जब विश्व रूप का दर्शन किया तो अर्जुन कहते हैं कि आपका ना आदि है ना अंत है, मैं आपको सर्वत्र व्याप्त देख रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा ऐश्वर्य, और फिर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। ये है कृष्ण ईश्वर के रूप में, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। जो एक एक्सपेक्ट बताइए कुंती महारानी, सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान, ईश्वर है। और ऐसे अद्भुत ईश्वर है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। हम्म भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी इच्छा प्रबल, भगवान की इच्छा को प्रबल करना है हमें। हम्म, जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा होना चाहिए।
जो कृष्ण चाहते हैं वो होना चाहिए। कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण की इच्छा प्रबल है। तभी कृष्ण पांडवों से कहते हैं ना, अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। फिर कहते हैं कि तुम पांडवों को छोड़ के दोनों पक्षों के सारे लोग मारे जाएंगे। कृष्ण तत्व, ये कृष्ण की प्रभुता है। जो इस संसार में, जो पानी के बुलबुले के जैसे अनंत ईश्वर प्रकट हो रहे हैं ना, पानी के बुलबुले के जैसे, भगवान उन समस्त ईश्वरों को धत्ता बना देते हैं। और तब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूंगा। करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है। हम्म, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूंगा। अर्जुन ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए। हम्म, अर्जुन ने कहा कि सोशल गड़बड़ हो जाएगा, पॉलिटिकल गड़बड़ हो जाएगा, हाँ इमोशनली बता रहे हैं, फिजिकली नुकसान बता रहे हैं, समाज की परंपरा का नुकसान, ये सब बता रहे हैं। अर्जुन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, स्वधर्म की बात कर रहे हैं, पर कृष्ण की इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं अर्जुन। कृष्ण की इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं कि जैसा कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं, हम उनकी इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए। बलि महाराज, बलि महाराज क्या कहें कि अगर मेरा सब कुछ लूटता है, हम्म, तो मैं तत्पर हूं, हे कृष्ण, आप प्रसन्न होने चाहिए। हम्म, और ब्रजवासी क्या कहते हैं, ये सब शरणागत भक्त हैं भगवान के। और ब्रजवासी क्या कहते हैं, हे कृष्ण, जैसा आपकी प्रसन्नता है वैसा आप हमसे कराइए। जो आप चाहते हैं वो आप हमसे कराइए कृष्ण। आपको शरणागत हैं। आप, अगर आपकी इच्छा है कि हम नरक में वास करें और आप उससे प्रसन्न होते हैं, तो यस्मिन तुष्टे, आप जैसे संतुष्ट हैं स्वामी, आप जैसे संतुष्ट हैं, आपकी इच्छा को प्रणाम, आपकी सेवा को प्रणाम है। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, हम वैसे ही करेंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई मत नहीं है, जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा हो। ये भक्त बोलता है, ये भक्त कहता है। हम्म, कठिन है पर आवश्यक है। कृष्ण की इच्छा से ही चलना है हमें, तभी तो हम भक्त होंगे ना। तो होंगे। कृष्ण की इच्छा प्रबल है। तो यहाँ पर परमात्मा फीचर की बात कर रही है कुंती महारानी। Eternal time is the witness of all our actions, good and bad, and thus resultant reactions are destined by him. और जो भगवान है, अब भगवान का तो इतने सारे स्वरूप हैं,
हम कह रहे थे कुंती महारानी ये कह रही है कि भगवान के तो इतने सारे स्वरूप हैं। भगवान गुणावतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। हम्म। भगवान पुरुषावतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान लीला अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान हम्म, मनवंतरा अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान शक्त्यावेश अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। हाँ। भगवान युगा अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं और प्रकट हो रहे हैं। प्रकट हो रहे हैं ना भगवान, हो रहे हैं। और भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। भगवान की प्रकृति है मुख्यतः मार्जिनल, एटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर एक्सटर्नल का अगर सब डिविजन करें तो थ्री मोड्स ऑफ नेचर। फिर भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रह वच। कितना गुणगान करेंगे भगवान की शक्ति का। इंटरनल जो एनर्जी है उसमें आह्लादनी शक्ति है, यश शक्ति है, क्रिया शक्ति है, बहुत सारी इच्छा शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की। समस्त शक्तियां जो भगवान की कार्यरत है, उन शक्तियों में से, और भगवान की शक्ति और शक्ति में वैसे कोई एक भी है और भेद भी है। क्योंकि वो भगवान की शक्ति है इसलिए वो भगवान ही है। और चूंकि वो भगवान की शक्ति है और भगवान की है इसलिए वो वैसा मैनिफेस्टेशन करती है। तो भगवान की जो शक्ति है उसकी, या भगवान का जो, भगवान जो प्रकट होते हैं एक रूप में, भगवान अनंत रूप में प्रकट होते हैं। जलचरों के बीच में भगवान मत्स्य के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। पशुओं के बीच में भगवान नरसिम्हा देव के रूप में प्रकट होते हैं या वराह के रूप में प्रकट होते हैं। ग्रंथों के बीच में भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं। मनुष्यों के बीच में भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान समस्त, हाँ, स्थानों पर, स्थितियों में, परिस्थितियों में भगवान शाश्वत रूप से स्थापित हैं। कृष्ण की इच्छा प्रबल है और बलवान है। सर्वत्र भगवान स्थापित है। सर्वत्र भगवान है। भगवान की इच्छा प्रबल है। जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जो कृष्ण चाहेंगे वो ही होगा। उसमें से एक एस्पेक्ट को श्रीमती कुंती महारानी टच कर रही है। वो क्या एस्पेक्ट है भगवान का? काल। काल के रूप में भगवान आप सब कुछ विनाश कर देते हो, सबको कंट्रोल कर लेते हो, सबको असहाय कर लेते हो। यू गवर्न एवरीवन माय लॉर्ड। यू गवर्न एवरीवन एंड एवरीथिंग। आप परम भगवान हैं। इस सेवा को नतमस्तक, आपकी इच्छा को नतमस्तक कर रही है कुंती महारानी। अद्भुत है कुंती महारानी। ये हैं प्योर डिवोटी। क्या कुंती महारानी धन्य है। स्त्री का शरीर है कुंती महारानी का, परंतु कार्य देखिए और हृदय देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर में है। कुंती महारानी तो नित्य पार्षद हैं, परंतु फिर भी जो शरीर धारण किया, अगर उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो हम बोलेंगे कि, इसलिए भगवान की भक्ति सब कोई कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए। सभी को करना चाहिए। भगवान की भक्ति तो सभी के लिए है। भगवान की भक्ति सभी के लिए है।
तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए वो जो भगवान की भक्ति करने से किसी को रोके, लेकिन भगवान की भक्ति के आड़ में उत्पात नहीं करना चाहिए। अनाचार, दुराचार, व्याभिचार ये नहीं करना चाहिए भगवान की भक्ति में आड़ में। पापाचार, ये फिर कपट है, ये भगवान को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। तो भगवान को तो कोई धोखा दे नहीं सकता, हम धोखा खा जाएंगे। हम धोखा खाएंगे, कृष्ण को कोई धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, सेवा के भूखे हैं, गुणगान के भूखे हैं। कीर्तन चाहिए, कथा चाहिए, कृष्ण को सेवा चाहिए, कृष्ण वहीं प्रकट हो जाएंगे। और अगर हम कृष्ण या कृष्ण के भक्तों से द्वेष करेंगे या उनको प्रताड़ित करेंगे तो कृष्ण हमारा सर्वनाश कर देंगे फिर। कृष्ण नहीं छोड़ने वाले। तो एक एस्पेक्ट जो है भगवान का परमात्मा फीचर, उसके बारे में कुंती महारानी चर्चा कर रही है। वो परमात्मा फीचर क्या है? काल, समय है। तो समय के रूप में भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हर किसी को कंट्रोल करते हैं। हम्म। और भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, ये भगवान की शक्ति है। यानी भगवान ने सबको कंट्रोल करके रखा है। और भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में अंतिम अध्याय में, हे अर्जुन, ईश्वर यंत्र रूढ़ानी माया, सबको नचा रहे हैं, तुम उनकी शरण ग्रहण करो, उस परमात्मा की ग्रहण शरण ग्रहण करो। फिर भगवान कहते हैं आगे कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। प्रियोसी में सखा चेती, तुम मेरी शरण ग्रहण करो, हे अर्जुन तुम मेरी शरण ग्रहण करो, तुम मेरी शरण ग्रहण करो। तो ऐसे कृष्ण कहते हैं, ऐसे कृष्ण कहते हैं। और एटर्नल टाइम के रूप में भगवान हमारे सब कार्यों को देख रहे हैं, गुड बैड सब कुछ। तो ये जो भगवान का सर्वत्र व्याप्त पावरफुल फीचर है, भगवान शक्ति प्रदर्शित करते हैं इस फीचर के रूप में, परमात्मा के रूप में, परम ईश्वर के रूप में, और काल के रूप में भगवान अपनी परम शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि कोई मुझसे परे, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझसे परे कोई सत्य नहीं है। दिस श्लोका इज एक्चुअली समरी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता का सार है ये श्लोक। सूत्रे मणिगणा इव, भगवान कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे अलग अलग तरह से। हे अर्जुन तुम युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध च, लाभ हानि की चिंता करे बिना युद्ध करो, जय पराजय का विचार करे बिना युद्ध करो। भगवान भगवद गीता इतनी अद्भुत तरीके से अर्जुन को समझाए। और अर्जुन कोमल हृदय के व्यक्ति होने के कारण से ये युद्ध नहीं हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं कैसे करूंगा इन सब का वध, कैसे करूंगा इन सब का विनाश कैसे करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं मेरी इच्छा से करो, मेरी आज्ञा से करो। कृष्ण अद्भुत है, कृष्ण अद्भुत है।
कृष्ण की भगवत गीता अद्भुत है। अर्जुन कह रहे हैं मैं सन्यासी बन जाऊंगा, कृष्ण कह रहे हैं सन्यासी नहीं बनना है तुम्हें, तुम्हें राज्य करना है। अर्जुन कर रहे हैं मैं भिक्षाटन करूंगा, कृष्ण कह रहे हैं तुम भिक्षाटन नहीं करोगे, तुम्हें राज्य करना है। कृष्ण क्या करना चाहते हैं तो कृष्ण ही जानते हैं। हम सभी को सरेंडर होना होगा कृष्ण के लिए। और अगर हम कृष्ण से प्रेम से सरेंडर नहीं होंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कृष्ण से प्रेम के स्वरूप में सरेंडर हो जाएं। प्रेम का स्वरूप में सरेंडर होने का क्या मतलब है? जैसा कृष्ण चाह रहे हैं वैसे करते जाएं। और नहीं तो कृष्ण प्रकृति के रूप में, काल के रूप में, परम ईश्वर के रूप में वो फोर्सफुली हमसे करवाएंगे जो वो चाहते हैं। सो अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू फॉलो कृष्णास पाथ, either थ्रू प्रकृति। तो हमने पहले भी चर्चा की, पांच तत्व हैं: प्रकृति, कर्म, जीव, काल और ईश्वर। उसमें से चार तत्व शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म के ऊपर है। हम्म, कर्म और प्रकृति, ये जो दो तत्वों में फंसा हुआ है जीव। तो हम अगर कर्म का आश्रय लेंगे, हम कर्म का आश्रय ले सकते हैं तो हम कर्मकांडी हो जाएंगे। फिर हम कर्म के अलावा प्रकृति का आश्रय लेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। हम स्वयं का आश्रय लेंगे तो हम आसुर हो जाएंगे या फिर योगी हो जाएंगे। योगी स्वयं के बल पर सिद्धि प्राप्त करता है। या फिर आसुरिक व्यक्ति होता है, जो राक्षस होता है, जो न प्रकृति को मानता है, न कर्म को मानता है, न ईश्वर को मानता है। तो वो आसुरिक व्यक्ति है। फिर वो नीति नियम सब भंग करता है। चौथा है कि हम काल को माने कि समय बड़ा बलवान, तो हम पशु हो जाएंगे, हेल्पलेस पशु की भांति हो जाएंगे। भूत पशु जो असहाय है, कुछ नहीं कर पाएगा। और पांचवा है कि हम ईश्वर का आश्रय ले सकते हैं, यानी कृष्ण। तो अगर हम ईश्वर का आश्रय लेंगे तो हम भक्त हो जाएंगे। हम भक्त हो जाएंगे। तो हमें भक्त बनना है। हमें भक्त बनना है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भक्त कौन होगा? जो प्रत्येक अवस्था में कृष्ण की बात मानेगा, जो प्रत्येक अवस्था में क्या करेगा? कृष्ण की बात मानेगा, कृष्ण के अनुसार अपने जीवन को जिएगा। कृष्ण ही उसके जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण ही उनकी गति है, कृष्ण ही उनके स्वामी हैं, कृष्ण से ही तत्व चलेंगे सारे। जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा होगा। It is no use saying that we do not know why and for what we are suffering. We may forget the misdeed for which we may suffer at this present moment, but we must remember that Paramatma is our constant companion, and therefore He knows everything past, present, and future. हम्म, भगवान सब कुछ जानते हैं। हाँ, कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, कैसे नहीं किया, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए भगवान हमें दंडित करते हैं, या प्रकृति के रूप में हमारे कर्म हमें दंडित करते हैं। And because the Paramatma feature of the Lord Krishna destines all actions and reactions, he is supreme controller also। और इसीलिए भगवान जो है परम कंट्रोलर है। अनु उपदृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता के रूप में भगवान।
परम कंट्रोलर है, सारी एक्शंस को गवर्न करते हैं। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड इट कैनॉट हैपन। And that's why it is said, without his sanction, not a blade of grass can move. Living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is the cause of suffering. जो लिविंग बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है, हाँ, आर गिवन एज मच फ्रीडम एज दे डिजर्व, उतना ही फ्रीडम मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं। और ऐसा जो मिसयूज होता है उनके फ्रीडम का, दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। जो मिसयूज करते हैं उसके कारण सफरिंग होती है। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डू नॉट मिसयूज देयर फ्रीडम। जो भगवान के भक्त होते हैं वो फ्रीडम को मिसयूज नहीं करते, एंड देयरफॉर दे आर द गुड सन्स ऑफ द लॉर्ड। और इसीलिए वे भगवान के अच्छे पुत्र हैं। जो दुष्ट पुत्र होता है वो भगवान की आज्ञा नहीं मानता। Others who misuse freedom are put into miseries destined by the eternal God. जो बाकी लोग हैं जो मिसयूज करते हैं फ्रीडम को, हम्म, वो सफरिंग, उनको सफरिंग होती है, मिजरीज होती है काल के द्वारा। द काल ऑफर्स द कंडीशन सोल्स बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरीज। जो काल है, जो बद्ध आत्मा है, उनको क्या करते हैं, सुख और दुख दोनों देते हैं। इट इज ऑल प्रीडेस्टाइन्ड बाय एटर्नल टाइम। ये प्रीडेस्टाइन्ड है बाय एटर्नल टाइम, शाश्वत काल के रूप में। As we have miseries uncalled for, so we may have happiness also without being asked for. They are all predestined by God. ये सब काल के द्वारा predestined है। No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. इसलिए कोई भी भगवान का शत्रु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। Everyone is suffering and enjoying the results of his own destiny. अपने अपने कर्मों के हिसाब से सभी को भोगने को मिल रहा है। This destiny is made by the living beings in the course of social intercourse. और ये इस प्रकृति में रहते हुए जीव अपने कर्म और कर्मों के द्वारा इसको प्राप्त करता है। सोशल इंटरकोर्स, प्रकृति, गुण और जीव अन्य जीवों के साथ मिलकर के वो अपनी डेस्टिनी को बनाता है। कर्म, गुण और अन्य जीव ऐसे मिलकर उसकी डेस्टिनी बनती है। तीनों तत्व हैं यहाँ पर। और परमात्मा और काल के रूप में भगवान दृष्टा है, सिर्फ ऑब्जर्वर है, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऑब्जर्वर रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये जीव दूसरे जीवों के साथ मिलकर प्रकृति और गुणों के प्रभाव में क्या करता है। एवरीवन हियर वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। सभी लोग इस संसार में लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर करना चाहते हैं। एंड दस एवरीवन क्रिएट्स हिज ओन डेस्टिनी। और इसीलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के सुपरविजन में। ही इज ऑल परवेडिंग। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। एंड देयरफॉर ही कैन सी एवरीवन्स एक्टिविटीज। इसलिए भगवान सभी की एक्टिविटीज देख सकते हैं। एंड बिकॉज द लॉर्ड हैज नो बिगिनिंग और एंड, ही इज नोन एज ऑल्सो नोन एज एटर्नल टाइम और काल। और क्योंकि भगवान के लिए कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, शाश्वत है, इसलिए वे काल के रूप में भी हम्म, व्याप्त है। ये भगवान की ये एक विभूति है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस पूरे संसार को धारण करता हूं। कृष्ण डजंट हैव टू कम हियर टू डू एनीथिंग विद द मटेरियल वर्ल्ड। कृष्ण हैज ओनली गॉट टू डू व्हाट, ओनली गॉट टू डू आस्वादन। ये कृष्ण करते हैं, अपने भक्तों के साथ रसास्वादन करते हैं, ये कृष्ण करते हैं।
तक होना है, हमें कृष्ण को शरणागत होना है। कृष्ण ये चाहते हैं, तो यही उनको स्वीकार्य है। Thank you so much, dear Vaishnavas, for joining in today's session. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।